Good afternoon to our viewers. Welcome to ICEarth. As you know, ICEarth, as a lot of you may know or may not know, ICEarth platform we have initiated. It is about discussing eco-friendly and environment-friendly steps that we can take in our lives and in a lifestyle that we can adapt or adopt, so that in future or the future generations will not have that much of problem that we are facing. So the idea is to let people know through information that they can take certain steps that can help in curbing global warming, but then that thing changed to start with every single person. So that is how we have decided to start this ICEarth platform. And to our viewers, let me know, I would like to let you know that today we have with us a very young and really hard working civil engineer and civil and structure engineer, Yes, thank you. Mr. Neeraj Kumar. He is from East Champaran, Bihar. His house is near Indo-Nepal border, and he's decided to be with us and share his idea on how he's going to take initiative into eco-friendly steps in construction line. So, Mr. Neeraj, could you tell us some more about the background into your civil engineering and construction structural engineering background? First of all, I want to say that what is civil engineering? Okay. Civil engineering is a professional type of engineering which keep the maintenance of all the things. Discipline in construction line, discipline in nature. We construct anything without disturbing any part of the nature. Okay. That's called the civil engineer presence of mind. That is really interesting, because now the way you have defined it, I was only aware that okay, this is a civil engineering profession, so this is what a particular civil engineering does. But though I know that a lot of things are involved into it, but this is the first time myself that I'm going to on this platform. Through this platform, I'll get to learn more about what exactly in depth is civil engineers do, and how deeply they look into things, and how deeply they work. The staff and ones working with you should take care of these things, right? So I guess that is also what you want me to say. Yes. So please continue. We want to construct anything without harming the nature. Okay. But beside of these things, due to some construction, the lot of waste products are released from construction sites, All right. which Yes, we that- do not know how to reuse it or how to keep them where which do not affect the nature. Okay. But when I was working in job, I saw that there was lot of harming to the land where we do the farming. Because of our site or plant area, the waste of the machinery goes to the land area where the farmers did not allowed to do any farming, which also affects the demand of food supply in the market. Okay. So now I am trying to do something different, which may keep the both balance, nature and the construction both will remain in balance. I'm sure this will happen, because I think this is the future. Yeah. And this is because this is the future and people are slowly beginning to understand this. And because we are in Bihar, and Bihar is needs a lot of focus on these platforms. And so I hope after this, the 2020 CM election, the Vidhan Sabha election, a lot of things will be initiated by the government and people like you, so that Bihar can become the powerhouse of India. Because the talent is there, the concept is there, but only the concept is not being implemented in Bihar on a wide scale, I think, right? Yes. And tell me more about your, tell us more about your viewers and ICEarth staff. We would like to know about your work experience in the civil and structural engineering. I have completed my civil engineering in 2017, and I have started to work with a company in Meerut, which was working on the NHI project. National Highway Project. Yes, Okay. that is National Highway Project NH 58, Okay. which runs from Meerut to Haridwar. Haridwar. Oh, I am working over there. There is a lot of sites of there. The construction of bridge was there in Muzaffarnagar, and one flyover is in Meerut. okay. So I am working over the structure only, not in highway. I was a structure engineer. That's why. After that, because of some health problem was there, I switched from there to Murena, which is a different company, and I work there. Though I have total the 3 years of experience in construction line, but now I am trying to shift from job to our own work.
self-dependent work, self-dependent work. which is also related with the construction only, Of course, but of with course. different ideas. With different ideas and new ideas. Yes, of course. Very nice, very nice. So with different ideas, so now that you have initiated this talk also, we are wanting to discuss that as well. So tell me, this is news venture that you're beginning to start. I think please tell I think if I'm correct, the name of your company that you're looking to start is Narayan Construction. Yes, it is. So Narayan please Construction. elaborate a little more to our audience more on that. Narayan Construction is basically not only for the construction line, it also helps the people who does not know with the construction technically. All right, technically. Just take an example that we are in Laon village. Okay. If someone is going to construct a building, Okay. they did not go to the engineer Okay. to yeah, get that's the right. ideas of construction. Right. They only visit to the mistri, in English that is mason, Right. and they visit with to them and they say that we will construct this type. Hmm. And they did actually the mistri does not know any technical things. They That is true. they had only work experience. They have only the They have labor viewed the experience. construction Material, they viewed just जैसे कि They उन्होंने just know, उन्होंने देख लिया और सीख लिया सीख लिया. बट दे डिड नॉट हैव एनी टेक्निक. जैसे कि आज हम इस जमीन पे कर रहे थे, द कंडीशन ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट फ्रॉम द other side. Right, very true, very true. But this is need to be taken into consideration. We know the technical difference between the soil of this place and other place, Right. but मिस्त्री does not know. उनको बस ये पता है कि हमें घर इस तरह से उठाना है, उठाना this बट ये उनको नहीं पता है कि इस पे लोड कैलकुलेट, ये मिट्टी अगर हम घर उठा रहे हैं तो बस लोड ये मिट्टी ले पाएगी या नहीं. I hope ISET comes to a point where we are going to establish a good office, and I'm sure that we're going to talk to you about this. I hope this is a journey for it, because this is really in depth in village we are talking. So please elaborate, please continue. The Interesting. Mistri does not know technical knowledge, but they construct. The effect of that not seen at the time of construction, but after 10 years, it may possible that the structure get failure. And the structure is not a 1 or 2 days work. It's the dream of any people to Right. keep our family It's safe a and hard-earned money also. to keep our family safe under the house. If the house is not safe, then how family will be safe? Very true. You're very considerate about these things. That is very thoughtful of you. I'm happy that someone like you is coming over from city life and urban, semi-rural, semi-urban life, decided to work in startup in a border area. But your work will not be limited to border. Once people get to know more about you, Yes. I think they will. I know look I up have to to you. keep the patience to do some change in the body. That's right. Your focus is really great. So that is why great to have you. And so let's start some queries questions that we have for you. So how and when? Tell us how and when did you decide to make this transition from say job-oriented process that you are doing in a work for a company? It was a process. आज उठना ऐसे करना है काम, ऐसे करना है ऐसे काम, तो आपको एक्सपीरियंस था, वो आपने गेन किया, वो करते गए आप. सो उसके बाद आपने कब, कैसे और क्यों डिसाइड किया कि आपने ये अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप करेंगे? ऐसा है कि मैं कुछ चेंज चाहता था कंस्ट्रक्शन लाइन में. जैसे कि मैं 2017 से जॉब पे गया, कंपनी में गया, मैं खुश था, मुझे जॉब मिल गया कॉलेज के बाद. मैं साइट पे गया, कुछ दिन काम किया, मैंने देखा जब कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम शुरू हुआ, देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ द मटेरियल. कोई भी मटेरियल आता था कहीं रखा जाता था. द कंपनी एक्वायर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड which was actually the farming area, but it was taken to the lease. And the material was throwing here and there. Because of that, कहीं भी हम मटेरियल फेंक दिए आज. एक तो मटेरियल का वेस्ट हुआ, प्रॉपर जगह हम लोग नहीं बनाए. ठीक है. दूसरा क्या हुआ कि उस लैंड एरिया पे वापस से हम लोग को खेती करने के लिए कम से कम 2-4 साल टाइम चाहिए कि उस मटेरियल को वहाँ से हटाए प्रॉपरली. तो फिर लैंड में तभी कोई प्रॉपर ये नहीं है कि वहाँ खेती अच्छे से हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत लॉट्स ऑफ केमिकल मटेरियल वाज आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन लाइन टू कीप द कंक्रीट इन स्ट्रेंथ. तो उस वजह से क्या होता था कि मैं देखता रहता था, कुछ मटेरियल बर्बाद हो रहे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे आते थे टॉक्सिक जिसके चलते लैंड वेस्ट होता था. और जो एरिया लैंड कवर किया गया कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, उस एरिया में
वो तो प्रॉपरली उतना दूर का एरिया हमारा वो वेस्ट ही चला गया 2-3 ईयर के लिए कि बिल्कुल वहाँ पे फार्मिंग हो नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं। और एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती थी हमारे साइड पे, जैसे कोई मशीनरी चल रही है तो दे डिड नॉट हैव एनी एयर फिल्टर, द स्मोक विच रिलीज फ्रॉम द मशीन, दे डिड नॉट हैव एनी एयर फिल्टर which cause the toxic in air pollution also, and also they affect the lungs of our workers there which are working. और उनके डस्ट के वजह से, मशीनरी के डस्ट, जैसे हमारा एक आरएमसी प्लांट होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जिससे क्या होता है डस्ट बहुत रिलीज होती है, सैंड की और ये एग्रीगेट की डस्ट बहुत रिलीज होती है, जिससे जैसे अगल बगल की जो खेती हो रही है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनका फसल बर्बाद हो जाता है डस्ट की वजह से। बारिश तो रोज़ होती नहीं है, डस्ट होते होते वो ख़राब हो जाते हैं, तो जिसके चलते वो भी लॉस हुआ। मैंने वहाँ देखा ये सब चीज़, मुझे वहाँ देयर आई थॉट दैट दिस प्रॉब्लम इज़ ओनली विथ माई कंट्री के कंस्ट्रक्शन कंपनी ओनली ऑन दिस साइड। आई थॉट दैट कि चलो यहाँ पे हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये तो सभी के साथ हो रहा है। ओनली दिस आर केयरलेस, माई कंपनी इज़ केयरलेस, आई थॉट दैट। बट कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ साइड पे, मैंने कंपनी स्विच करने का सोचा कि मुझे पसंद नहीं आया नेचर के अगेंस्ट में जाके काम करना, तो मैं दूसरी कंपनी में गया। वहाँ भी मैं देखा, आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ दैट दिस इज़ द सेम थिंग एवरीवेयर। आई थॉट दिस इज़ द सेम थिंग एवरीवेयर, आई कांट लिव विद एस्केपिंग दिस। तो मैंने लास्ट में ये डिसीजन लिया कि I can't again do any work against the nature. That's why I tried to do some different idea and started my own setup. With keeping all the things in mind that the nature does not affect with my construction. And we all get the fresh environment where we have to. ठीक है, ये तो आपका आइडिया अच्छा है कि आप फ्रेश एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं, आपने जो काम छोड़ा, लेकिन ये चीज़ तो मुश्किल है कि कंपनीज जो हैं अभी उस मुकाम उस तरीके से उस चीज़ पे मेरे ख्याल से वो चीज़ 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, देयर इज़ नॉट 100% ऑफ कंट्रोल, बट हम लोग वहाँ पे ये कर सकते हैं कि उसको घेर सकते हैं। हाँ, उसको उतना प्रॉपर करे कि जो फालतू का वेस्ट हम कर रहे हैं वो नहीं करे। और जितनी लैंड रिक्वायरमेंट है हम लोग को उतना ही कवर करे और प्रॉपर पोजीशंस बनाए जहाँ पे मटेरियल से स्टोर हो सके जो बर्बाद ना हो। और बाद में लैंड हटाने में कॉस्टिंग भी आती है, 2-3 साल फार्मर का बर्बाद हो जाता है खेती में, वो सब ना हो। मेरा कहना ये है। ये सब तब वो फिजिबल हो जाता है। और जैसे कोई मशीनरी है जो ज़्यादा पॉल्यूशन करी, उसमें वी कैन यूज़ एयर फिल्टर। ओके, ये तो खैर आपसे और बात करेंगे हम आगे, जाकर पता चलेगा एयर फिल्टर किस तरीके से उसमें यूज़ करना है। ठीक है, और ये बताइए कि आपने जो ये अपना ये ट्रांजिशन फेज़ किया वो हमें समझ में आ गया, आपके व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे जो कि अब जागरूक हो रहे हैं। 21वीं सदी में अब मेरे ख्याल से लोग जागरूक हो रहे हैं एनवायरनमेंट चीज़ों को लेके। और हाँ, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ अपने पे बात नहीं, अपने फ्यूचर पे, अपने चिल्ड्रंस के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये बात नहीं है कि आज पानी की कमी है तो कल नहीं होगी, कल ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा और पेड़ ज़्यादा लगाना, बहुत कुछ है। तो ये बताइए कि आपने ये जो डिसीजन लिया कि वहाँ से ट्रांजिशन करने के लिए, तो आपने बोला कि हेल्थ एनवायरनमेंट है, और तो आप कोई पहाड़ी इलाके में भी अपना ऑफिस सेटअप कर सकते थे या फिर समुद्र के साइड। तो आपने ये रक्सौल पर्टिकुलरली इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास, जो कि एक नॉट अ पोल्यूटेड है, अदरवाइज इट इज़ वेरी पोल्यूटेड। अगर उसको एनवायरमेंटली भी उतना पोल्यूटेड नहीं है जितना कि वो ड्रेनेज और ओवरफ्लोइंग वगैरह के साथ, कचरा के साथ ज़्यादा पोल्यूटेड है, जो कि एक्चुअली बहुत ही गंदा है। बट स्टिल यू चोज टू गिव इट अ थॉट कि नहीं रक्सौल क्यों, तो रक्सौल क्यों आपने चूज़ किया? टू बी फ्रैंक, माई होल चाइल्डहुड लाइफ वाज स्पेंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ओनली। ओके, मेरा पूरा बचपन इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही बीता है, मैंने सारा चीज़ यहाँ देखा है। अच्छा, यहाँ पे बचपन से मैंने देखा कैसे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और पॉल्यूशन सबसे बेसिक चीज़ दिखा मुझे। पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, नेचर का कोई केयर नहीं है, सारे लोग केयरलेस हैं। तो मैं सोचा कि कंस्ट्रक्शन आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। सब घर बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, घर बनाने के चक्कर में कोई पेड़ पौधे कटवा दे रहे हैं, फिर प्लांटिंग करने का कोई कुछ सोचता नहीं है। हाँ, सोचता नहीं है, जो बात होती है लेकिन कोई सोचते नहीं। मान लीजिए कोई वेस्ट, आज मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा मटेरियल मंगवाया, मैं अपने ज़मीन पे नहीं रखा कि कहीं और रख दिया, और उसको फिर साफ़ करना भी भूल गया। हाँ, ये सब चीज़ मैंने बचपन से देखा, तो सोचा कि किसी डेवलप्ड सिटी में जाके काम करना तो सब कर लेंगे। अगर मैं यहाँ शुरू करूँगा, तो अगर यहाँ मैंने कुछ चेंज ले आया तो एवरीवन वुड
नो Would अबाउट appreciate it, मी वो चाहते एंड हैं। माय वर्क, हाँ और सब मेरे बारे में सुनेंगे, समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो Yeah. शुड आई कनेक्ट विथ हिम। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि लोग शायद चाहते हैं ऐसा काम करवाना, लेकिन उनको एक तो ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता है, हाँ दूसरा उनको शायद ये भी लगता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, ये सब क्या करवा रहे हैं, कहाँ वेस्ट कर रहे हैं पैसा। हाँ, सबसे बड़ा एक चीज़ ये peer देखिए, pressure यहाँ पे जो- क्या है कि कोई इंजीनियर ऐसे आके समझाते नहीं है, क्योंकि कुछ चेंज करने में आपको मेहनत ज़्यादा करना ज़्यादा पड़ता करना है। पड़ेगा। और यहाँ पे सोच है कि क्या बताना, इनको कुछ पता नहीं है, अपने से काम करवा देंगे हाँ तो अपना भी प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेचर्स के लिए कोई कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। हाँ। और मेरा बेसिकली नेचर और कंस्ट्रक्शन दोनों को मॉडिफाई करना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एंड में तो पैसा किसी भी तरीके से आप कमा लेंगे, हाँ लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं किसी जगह को चेंज करने का, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब मैं आयसत को आप आदापुर गांव के पास शुरू किया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ब्लू और ग्रीन डस्टबिन आए थे, वेट और ड्राई वेस्ट वाले, जो कि कमेटी में के हॉल में रखा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे वार्ड सदस्य से पूछा था, आई आस्क्ड द वार्ड इंचार्ज कि वाई इज़ दिस डस्टबिन बीइंग नॉट यूज्ड। मैं पूछा कि ये डस्टबिन यूज़ क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ क्योंकि मैं दिल्ली से आया तो मैं देखा कि ये तो गांव में चीज़ें हैं। बोला कि सर प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड देम, प्रॉब्लम इज़ व्हेन वी प्रोवाइडेड देम द पीपल इन द विलेज, ये इनको चारा अपने वो भैंस बकरी गाय के चारा वो उनके खाने के लिए उसको यूज़ करने लगे। तो इसमें वो गाँव वाले की भी गलती नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये समझ में आया कि उनको समझाया नहीं एक समझाया नहीं गया, तो बीच में कोई पर्सन नहीं था जो उनको समझा सके। नाउ सेम थिंग विद कंस्ट्रक्शन गोज कि कोई समझाने वाला नहीं था। अब आप आ रहे हैं, आई थिंक विद दिस थिंग दैट वी आर डूइंग टुगेदर राइट नाउ, आई थिंक व्हेन वी पास ऑन दिस मैसेज अमंग द पीपल, ये जो चीज़ है ना कि जो बीच में कोई नहीं है समझाने वाला, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपका। एंड आई होप मैं इंटरव्यू के पहले मैं चाहता हूँ कि लोग को मैं समझाऊँ। अगर मान लीजिए कि मैं अगर उनका हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वो खुद अपनी हेल्प कर जाए, हाँ ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। एक कंपनी अच्छी कैसे बनती है, मैंने पहले आईसत शुरू किया, मैं चाहूँगा कि मेरे से अच्छा स्टाफ आईसत पे आए, यस क्योंकि वो इसको आगे लेके जाएगा, वो उससे अच्छा लेके आए। हर कुछ तो मैं नहीं जानता, नहीं, ऐसे ही होता है। अब हम पहले से धारणा बना ले कि जो चीज़ हम कर रहे हैं और किसी को आता ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता, ये तो गलत बात है। फिर तो समाज में कोई ऐसा परिवर्तन आएगा नहीं लार्ज स्केल पे। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू शो देयर टैलेंट। हो सकता है आप में कोई जो जिसको सीमेंट का परख हो इस एरिया के लिए, वो ज़्यादा अच्छा करता हो, कोई छड़ समझता हो। आई डोंट, मैं तो लेमन वाला बात बोल रहा हूँ। इन डेप्थ टेक्निकलिटी आप ज़्यादा जानते होंगे कि कौन से प्रेशर पॉइंट से बिल्डिंग में, वो सब चीज़ आप जानते होंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे साइट्स पे रक्सौल में जब से मतलब मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके आके घर पे कुछ दिन रहा, देखा, तो मैंने बहुत सारे साइट्स पे गया। लोग मुझे बुलाते थे, एक बार सर देख लीजिए चल के, मेरा काम चल रहा है। अच्छा तो मैंने बहुत सारी मेजर मिस्टेक्स देखी। मैंने मिस्त्री से पूछा, उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे कुछ ये बात मैंने देखा है बिहार में, सर इस सबसे कुछ नहीं होगा। हाँ, सब ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट दैट, तो दे विल से उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, वी नो दैट। आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग टू द, मतलब उनको मैं बताना चाहता हूँ जो अपनी घर पे काम करवा रहे हैं, हाँ, जो ओनर है, इन्वेस्टर हैं, कि आप जानिए ये क्या मिस्टेक है, इससे आपको बाद में क्या प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, ये आप अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए आज बनवा रहे हैं कि बारिश से धूप से बचेंगे, घर में रहेंगे। बिल्कुल, कल को घर ही गिर गया, आप अंदर रह गए तो क्या करोगे। बिल्कुल। अरे सबसे समस्या तो घर तो बाद में गिरते हैं, बारिश होती है इतनी कि डैम जो लग जाता है वो इतना ख़राब लगता है। अब ये बताइए कि सपोज़ हम चाहते हैं कि रक्सौल में एक पीवीआर जैसा हॉल बने। हाँ, अब पीवीआर जैसे बने, मान लीजिए आप जैसे इंजीनियर यहाँ पे हैं, आपको वो काम दिया गया, तो एक भरोसे के साथ कह सकते हैं ना कि अगर कोई मिस्त्री को भी मार करें बोला, तो बोल सकते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा काम, नहीं होगा। हाँ, ये कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ बोलने वाला नहीं है। और कुछ मान लीजिए आपको कुछ नॉलेज है थोड़ा बहुत, आप चाहते हैं मिस्त्री से बोलना कि ये ऐसे कर दो, दे विल से दैट कि सर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही है, बिकॉज दे हैव टू डू सम हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते। ये बिहार की, ये हमारे एरिया में मैंने देखा है, हार्ड वर्क से कतराते हैं लोग। हाँ, दे फाइंड द इजी वे टू कंप्लीट देयर वर्क एंड गेट द मनी। वो उनका रोज का है कि अरे बन गया ना पैसा, ठीक है, और काम को डिले करो, रोज का बनते रहेगा। सही बात। अच्छा, एक और बताइए कि थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा कि कोई ऐसे सर्टेन मिस्टेक्स जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं जो अवॉइड किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिकॉज समटाइम्स प्रोफेशनल हेल्प लोग नहीं लेते हैं, सो सर्टेन मिस्टेक्स हो जाता है। कोई ऐसा बारीकी, कोई ऐसा
मिस्टेक दिखाई जो बहुत कॉमन है, जो जैसे हमारे ऑडियंस भी समझ सके कि हाँ ये तो हमारे साथ भी होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली 2-3 जगह साइट पे गया था। एक तो हमारे गांव में ही हो रहा है, जो मैं वहाँ भी मैंने कुछ देखा, और मैं बेतिया गया था अच्छा। रिसेंटली, तो वहाँ भी मैंने साइट पे विजिट किया तो देखा। यहाँ क्या होता है, बेसिकली कॉलम से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेन पार्ट्स कॉलम एंड बीम होते हैं स्ट्रक्चर के। तो कॉलम में मैंने क्या देखा कि इफ मतलब कोई अगर इंजीनियर से विजिट करके इन्वेस्टर अपना ड्राइंग बनवाया भी है तो वो उन्होंने मिस्त्री को दे दिया। मिस्त्री दे डिड नॉट रीड एनीथिंग, मतलब उन्होंने कुछ समझा नहीं, बस वो देख लिए ये है कि कॉलम का साइज़ ये है और हमको स्टील इसमें ऐसे ऐसे लगा देना है। अच्छा। बस इतना देखे वो और कॉलम बनाना शुरू कर दिया। बट ये उन्होंने कभी नहीं देखा कि कॉलम में जो हम ओवरलैपिंग देते हैं, जैसे हमारे जो छड़ होता है वो मैक्सिमम 12 मीटर होता है। ओके। बट हम लोग 12 मीटर से अगर अदर हाइट पे जा रहे हैं तो ज्वाइंट करना पड़ेगा छड़ को। तो यहाँ मैंने क्या देखा, जैसे हमारे एक कॉलम बना, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फ्लोर तक आया। तो कॉलम में बेसिकली टेक्निकली जो होती है ज्वाइंट्स, हम लोग उसको बी जोन देते हैं। तो कॉलम का 3 जोन में डिवाइडेड है, ए जोन, बी जोन एंड ए जोन अगेन। अच्छा। ए जोन, द बॉटम पार्ट इज ए जोन एंड अपर पार्ट इज ए जोन एंड द सेंटर पार्ट इज बी जोन। अच्छा, ये जो बॉटम पार्ट है अंडरग्राउंड वाला बेस है कि नहीं, it is the part above the ground level. Technically we say that it is plinth level. Okay. Plinth level के ऊपर L/4 is A zone and upper part is the below the slab is B zone. Okay. And the center part is B zone and both upper and lower part is A zone. Okay. तो जो ज्वाइंट हम लोग को प्रोवाइड करना होता है वो एक्चुअली होता है बी जोन में। ओके। बट आप भी देखे होंगे सारे घर में, मैक्सिमम घर में। नहीं, हम देखे नहीं, क्योंकि हम देखे भी तो कुछ समझ में नहीं आया। आप देखे होंगे, अब समझिएगा। हमको जो लोग बोला मिस्त्री लोग वही हो गया। अब आप प्रॉब्लम हो रही है हमारे घर में। बता रहा हूँ, आप समझिएगा कि क्या होता है। घर हमारा फर्स्ट फ्लोर बन गया, सेकंड फ्लोर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमने छोड़ा। तो उसमें क्या होगा कि छड़ आप देखते होंगे फ्लोर से 1 फीट 2 फीट काट के वो छोड़ देते हैं और सारे छड़ को इक्वली काट देते हैं। ओके। जैसे कि ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर छड़ आप इक्वली काटे हैं और ज्वाइंट दे रहे हैं, मान लीजिए कभी प्रेशर आया तो सारे ज्वाइंट्स एक जगह हैं। आप 4 टूटे हुए लकड़ी को जोड़ के एक ही जगह रखिए और डिफरेंट जगह पे रख के तोड़ने का कोशिश कीजिए, तो बहुत फर्क पड़ेगा स्ट्रेंथ में। राइट। वही बात होती है। अगर हम लोग स्टील का कटिंग करते हैं तो अल्टरनेट चलता है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, फिर एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, जिससे क्या हो कि सारा लूज स्ट्रेंथ एक जगह पे नहीं आए। ओके। क्योंकि कटा हुआ कोई भी चीज़ थोड़ा लूज हो जाता है स्ट्रेंथ में। अच्छा। तो वो चीज़ है। अब यहाँ क्या देखा मैंने कि सबको इक्वल लेंथ से कटिंग किया गया और सारे ए जोन में ही काटते हैं। अच्छा। किसी का ओवरलैपिंग बी जोन में नहीं जाता। तो ये मेजर मिस्टेक एक कॉलम में ये दिखा मुझे। तो बहुत ही मेजर मिस्टेक है। मेजर एक देखिए, जैसे वो दिख रहा होगा आपको, वो कंस्ट्रक्शन लाइन। हाँ, इसलिए मैं बोला ना कि इस घर में जैसा हो रहा था होने। अगर मैं आपको इमेज दिखा सकता तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। मैंने देखा था वहाँ, बाद में मैं शेयर कर दूंगा, आप वीडियो में डाल देना। हाँ, ठीक है। वो आप पता चले कम से कम कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। और एक चीज़ और देखा मैंने कॉलम के साथ, ऐसा मिस्टेक कि जो हम एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। राइट। जैसे क्या होता है गांव एरिया में ही, जैसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लोड बियरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फ्रेम स्ट्रक्चर आजकल मॉडर्न युग में ज़्यादा चल रहा है। तो लोड बियरिंग में क्या होता है कि कॉलम और वॉल साथ में ही उठाया जाता है। तो यहाँ मैंने देखा कि वॉल उठा दिए लोग और कॉलम फिर बाद में उठा रहे हैं। ठीक है। जिसका सारा मटेरियल कॉलम का जो होता है कंक्रीट, वो वॉल पे चला जाता है। जिससे कि हम लोग का कॉलम देना नहीं देना कोई मतलब नहीं रहा। सिर्फ टोटली वेस्ट ऑफ मटेरियल बोल लीजिए उसको, या कुछ भी बोल दीजिए। अगर हम लोग कॉलम उस डिज़ाइन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो, तो इस सब को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि एजुकेशन, या फिर लोग अवेयरनेस हो जाए, या फिर आप किसी इंजीनियर को हायर, प्रोफेशनल इंजीनियर का हायर, सजेशंस हो, हाँ हायर कीजिए। सिर्फ नक्शा बनवाना सॉल्यूशन नहीं है वो। तो क्योंकि आप सिविल साइट पे अगर कोई इंजीनियर जा रहे हैं तो पर्सनली देखेंगे कि मिस्त्री क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो उसको रोकेंगे। आपको पता नहीं, आप रोक नहीं पाइएगा, आपका नुकसान होगा।
इंजीनियर्स का तो क्या है, वो ड्राइंग बना के दे दी, आप समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपका नुकसान। इसलिए मेरे सोचने के हिसाब से एक सिर्फ मैप बनाने का काम नहीं नहीं, है, हाँ आपको उनको हायर करके तरीके से हाँ पूरा आप एक construction हायर करना कीजिए, पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम तब तक जरूर कीजिए जब तक आपका कॉलम सही ना हो जाए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट लोड ट्रांसफरिंग चीज़ कॉलम होती है। ओके, ये सबसे बेसिक चीज़ है कि कॉलम अगर सही नहीं है तो स्ट्रक्चर कभी भी फेलियर हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ करिए या ना करिए, साइट पे सिविल इंजीनियर को विजिट ज़रूर करवाइए, जो मिस्त्री को गाइड कर सके। ना रोज़ रोज़ नहीं, कभी जब भी आपको ज़रूरत लगा एक बार चेक करवा लीजिए। हाँ, जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे मेरे हाँ से, इसको वो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। अवॉइड करने का, इस छोटे छोटे मिस्टेक्स को, यही एक तरीका है कि आप कोई एक प्रोफेशनल साइट पे रखिए, 2-4 दिन आप रखिएगा, खुद आपको भी समझ में आ जाएगा समझ में आ रहा है, करेक्ट, हाँ कि क्या बता रहे हैं इंजीनियर। सही बात है। तो बस यही। हाँ, फिर कहीं कुछ लैप्स हो गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं मिस्त्री को कि मिस्त्री को कि ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे रखते अगर फिर आपको मिस्त्री ओवरलैप कर रहा है तो आप फिर कांटेक्ट कर लीजिए। So this is actually, to our viewers, is very important that you not only just get the map prepared, हाँ। you also hire a professional. मैप प्रिपेयर इज नथिंग, वो कोई भी आप भी बैठ के बना सकते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत वास्तु पता है, किचन यहाँ होना चाहिए, रूम यहाँ होना चाहिए, बाथरूम यहाँ होनी चाहिए। मैप इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, द बेसिक पार्ट इज द स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। अच्छे से फाउंडेशन मिल जाए, हाँ, और सालों साल जो बात करते कि टिकाऊ हो तो टिकाऊ बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिस्त्री कभी आपका घर बनाएगा तो कैलकुलेट नहीं करेगा कि टोटल डेड लोड या लाइव लोड क्या आ रही है आपको। ये तो मुझे भी नहीं पता, डेड फाइल हो गया, जो कि आपसे कंसल्ट करेंगे। होपफुली आप व्यूअर्स जब कंसल्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप उनको अच्छा सजेशन देंगे। आई कैन एक्सप्लेन विथ अ कैलकुलेशन ऑल्सो। मैं यहाँ के लोग को ऐसा बना देना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट का नहीं सोच रहा। बिल्कुल, ऐसे ही सोचना भी चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में। हाँ, जब मैं काम दे रहा हूँ उनको, हो सकता है वो चाहे कि मैं विजिट करने नहीं जाऊँ किसी भी प्रॉब्लम से कम उनको इतना तो नॉलेज होना कि ये मिस्टेक्स नहीं हो मेरे इस घर में। हाँ, अब ये तो क्लाइंट के ऊपर है कि वो इंजीनियर विजिट कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन घर बन रहा है तो अपना ख्याल तो रखना है। अपना ख्याल रखेंगे तो अपना ही ख्याल नहीं, फ्यूचर का ख्याल रखेंगे। फ्यूचर का, हाँ, क्योंकि घर में हम लोग, हर इंसान हमेशा के लिए तो नहीं रहता, नहीं रहेंगे, उसके बाद आगे उसके हाँ, बाद जनरेशन ही देखेंगे वो। घर तोड़ने के लिए तो नहीं बनवाते। वो चाहता है कि यह बनाए तो बस दिखते रहे। जब वो एक सपना होता है आदमी का, कि हर एक इंसान का एक सपना होता है अपना एक घर हो अच्छा सा। राइट, वो अच्छा हो तो सब अच्छा है, वो खराब हो गया तो सब खत्म। आप सुन रहे हैं ना। थैंक यू। अच्छा, तो ये तो था कि आपने रक्सौल के बारे में बहुत अच्छा बताया कि आप क्यों है। अच्छा, ये बताइए, अब हमारे व्यूअर्स को लगभग एक रफ आइडिया, फेयर आइडिया आवर व्यूअर्स हैव गॉट द कंस्ट्रक्शन वर्क, व्हाई प्रोफेशनल एडवाइस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, so what is your take on now, coming back to the first thing, how we started the topic on, I said like what is eco-friendly thing. So now since our viewers have got a rough idea that why it is important to hire a civil structural engineer, so now tell me like what is your take on the eco-friendly or green initiatives in construction business, like in and also in relation to like future electricity bills, how it can be saved, right, and a clean environment for children, atmosphere, waste management, ये सब इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मैं अभी यहीं आ रहा था आपके पास। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अभी ये आइडिया कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ताकि व्यूअर भी समझ सके। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता हूँ जो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ग्रीन बिल्डिंग, जैसे हम उसे ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं टेक्निकली, वहाँ ऐसा चीज़ होगा कि जैसे वी कैन यूज़ ऑल द नेचुरल एनर्जीज। ओके, instead of using man-made, we use natural energy to save our environment and to reuse our waste product। जैसे कि मैं ग्रीन बिल्डिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कि मतलब कि व्यूअर्स को बता दूं कि ये वही बिल्डिंग है जो आप बनवाना चाह रहे हैं। हाँ, वो उसमें स्टेप्स कुछ ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग नहीं है। हाँ, ग्रीन कलर की बिल्डिंग नहीं, और ऐसा भी कुछ नहीं कि बम्बार्ड हो गया, पैसे का बौछार हो गया, ऐसा भी नहीं। इट्स नॉर्मल बिल्डिंग, आल्सो ये इकोनॉमिकली। हाँ, आपके कॉस्टिंग जो है नॉर्मल घर से कम ही आएगी। कमी, अच्छा है, कमी आएगी, कमी है। मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि आपकी कॉस्टिंग कम, वेस्ट कम होगा तो कॉस्टिंग कम होगी, डेफिनेटली मटेरियल वेस्ट। और फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाली भी, हाँ बताइएगा आगे, प्रॉपर डिज़ाइन से आप बनाइएगा तो आपको पूरा एस्टिमेशन होगा कि मुझे इतना कंक्रीट मंगवाना है, इतना स्टील मंगवाना है, आप एक्स्ट्रा मंगवाइएगा नहीं तो वेस्ट नहीं होगा। तो बताइए आपका कितना कॉस्ट आपने बचा दिया। वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसा बिल्डिंग हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमने घर बनवाया, मैंने मटेरियल मंगवाया, मैंने उसका कैलकुलेशन करके दिया आपको, आप उस कैलकुलेशन से इतने अमाउंट का मटेरियल चाहिए, मुझे इतना चाहिए, आपने उतना ही मंगवाया,
3% वेस्टेज जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन, वो टेक्निकली उतना वेस्ट होगा, तो उतना मैंने ऐड करके मंगवा लिया है। अब कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया हम लोग, जो कहीं भी हम प्रॉपर जगह नहीं रखते थे का। और सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो प्रॉपर आपको प्लेस भी बताएंगे कि आपको ये मटेरियल यहाँ स्टोर करना है, ओके, ताकि वो वेस्ट ना हो आपका कभी। तो इससे क्या हुआ, एक तो आपका वेस्ट बचा, कॉस्टिंग बची, और ग्रीन बिल्डिंग में क्या आता है, जैसे हमने घर बनवा लिया, अब लाइट्स तो अब इलेक्ट्रिसिटी सब हमेशा ही रह रही है, तो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल का ये करते हैं, उनको आइडिया देते हैं। अगर सोलर पैनल घर में होगा, इन केस कभी मान लीजिए बारिश हो रही है, किसी भी प्रॉब्लम से लाइट नहीं है, फिर आप क्या करोगे, अंधेरे में तो रहोगे नहीं, तब आपको सोलर बैटरीज वगैरह काम आएंगे। तो सोलर पैनल लगाने से हमारा 2 प्रॉपर फ़ायदा है, जिस पे मैंने कॉलेज में भी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। ओके, और हमें बहुत आगे तक गए थे हम उस प्रोजेक्ट में भी। ऐसा था हमारा प्रोजेक्ट, जैसे हम छत बनवाए, अभी क्या हो रहा है, आपके छत पे धूप आ रही है, आपका रूम गर्म हो जा रहा है, आपको एसी लगवाना पड़ रहा है, प्रॉपर कूलर लगाना पड़ रहा है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अलग से दे रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर शेड के जगह पे हम सोलर प्लेट्स लगा दिए, सनलाइट डायरेक्ट आपके फ्लोर पे आया नहीं, छत पे आया नहीं, हीट नहीं, रूफ पे नहीं आया, तो जिससे हीट नहीं हुआ, और दूसरा आपको एसी का ज़रूरत नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा, और सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी आया आप उसको यूज़ करके घर में कर लिया, आपका सोचिए बिजली बिल कितना बचा आपका। बहुत बढ़िया, क्योंकि आने वाले समय जो मीटर जिस तरीके से अब बढ़ रहा है। हाँ, एक प्रॉफिट ये हुआ। दूसरा, ग्रीन बिल्डिंग में एक और, अगर आप सोलर प्लेट नहीं लगाना चाहते हैं, सोलर प्लेट में आपका थोड़ा आप सोच रहे हैं खर्च बढ़ जाएगा ना, तो उसका एक उपाय, हम ऐसा कंस्ट्रक्शन कराते हैं जिसपे प्लेट्स के साथ आपको प्लेट, कौन सा प्लेट? प्लास्टिक प्लेट्स आते हैं, नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक प्लेट्स, रीयूजेबल होते हैं। ओके, जिससे हम छत पे ही प्लांटेशन का आपको एक आइडिया देंगे। ओके, जिससे कि आपके छत पे प्लांट भी होगा, ग्रीनरी भी होगी, और छत भी गर्म नहीं होगा। तो ये प्लांटेशन में क्या सब्जी उब्जी भी उगा सकते हैं? सब्जी उगा सकते हैं आप, फ्लावर उगा सकते हैं, खाने पीने की सब चीज़ कर सकते हैं। छोटे प्लांट, बड़े पेड़ नहीं, छोटे प्लांट। हाँ, सब्जी हुआ, किचन गार्डन टाइप का कुछ। हाँ, किचन गार्डन टाइप। और फ्रेश एयर के लिए आप कुछ भी, मनी प्लांट, तुलसी प्लांट, समथिंग जो भी आप लगाना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट क्या है, फ्रेश एयर आया आपका घर में, एनवायरनमेंट फ्रेश रहा, और दूसरा प्रॉफिट है कि घर ठंडा रहा, क्योंकि जब आपके छत पे ग्रीन प्लांट हैं तो धूप तो नीचे आएगी। और एक प्लांटेशन का भी आपको मन में अच्छा लगा। सबसे बेसिक चीज़ आज के टाइम क्या है, पानी की दिक्कत हो रही है हमारा। ये पॉइंट में आने वाला था कि पानी, वाटर टेबल बहुत जा रहा है नीचे। ये तो हीट उठ तो हो गया, ये तो हमेशा आते जाते हैं पानी, लेकिन एक बार चला गया तो वापस नहीं आना, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब वाटर टेबल। इसके लिए हमारे हर प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को समझा के उनको समझा सको कि आप ये आइडिया ले लो। ये आपको आज के लिए नहीं बना रहे हैं घर, आप अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। राइट। उसमें क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हम मैं इसमें आने वाला था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बताइए। वो उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हम बचपन से जानते हैं, वो भी रहेगा उसमें, बट उसमें एक ऐसा सिस्टम रहेगा जैसे कि आपका वाटर स्टोर हो गया, आपने 10,000 लीटर का टैंक बनवा लिया, वाटर सेव हो गया। अब इफ़ इवन अगर मोर बारिश हो रहा है तो वेस्ट वाटर फिर टैंक से ओवरफ्लो होगा, तो उसके लिए हम एक ऐसा डिस्चार्ज पॉइंट बनाएंगे जिससे कि एक्स्ट्रा जो वाटर आएगा वो ट्यूबवेल के थ्रू वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा, क्योंकि वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। अच्छा। क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसको डायरेक्ट हम लोग वाटर टेबल रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई बोरिंग करा रखा है या हैंडपम्प रखे हैं, तो हम उसको कनेक्शन डायरेक्ट उस पंप में दे देते हैं कि वो वाटर टेबल को नीचे रिचार्ज करें। ओके। जिससे कि वेस्ट ऑफ वाटर कहीं ना हो। राइट। मतलब मिनिमल हो, मिनिमल टोटल जो हम सेव कर सकते हैं वो करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो 99.9% सेव है, 99% सेव है हमारे हिसाब से। अगर हम एक होके इतना सेव कर रहे हैं, अगर 10 लोग ऐसे करें तो कितना पानी। एक्चुअली दिस इज द मोटिव ऑफ आईसर, कि हर एक इंसान ऐसा से क्या कदम ले सकता है। दैट इज हाउ यू गोइंग टू आइस कैप्स को हम कैसे बचा सकते हैं। इससे देखिए क्या प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए कि कभी लाइट नहीं है, आप मोटर चला नहीं पाए, आपके पास पानी नहीं आया, आप उस सेव्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेन वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। आप उसको गर्म करके पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, और नहाना वहाना बर्तन सब चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, खाने बनाने में भी सब चीज़ में कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक तो एनर्जी रिसोर्स भी बचा हम लोग का, बिजली बिल, पानी सेव करने से, और दूसरा हमने अपने फ्यूचर को भी सेव किया। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। एक लास्ट पार्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड, विंडोज़ एंड डोर पोजीशंस। ओके। अब क्या होता है गांव में, जैसे गांव में तो चलिए फिर भी ठीक है कि आपके अगल बगल ज़मीन खाली है तो आपने खिड़कियां दे दी,
तो प्रॉपर साइज और प्रॉपर पोजीशन अकॉर्डिंग टू वास्तु जो खिड़की होते हैं उससे हमारा काम जो है वास्तु से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम ऐसा घर बनाना चाहते हैं कि कोई भी निगेटिव एनर्जी किसी के घर में ना रहे, पॉजिटिविटी रहे और लोग खुश रहे। तो डोर एंड विंडो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि जब तक आपके घर में फ्रेश एयर आएगा नहीं तो अंदर का निगेटिव एनर्जी कहाँ जाएगा। फ्रेश एयर आएगा और निगेटिव एनर्जी, इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए कि एक तरफ से एयर इन करे तो दूसरी तरफ से एग्जिट करे। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम लोग ये कंस्ट्रक्शन देते हैं। इस आइडिया पे हम वर्क कर रहे हैं, अब देखिए कहाँ तक आगे जा पाते होगा, क्योंकि ये सब चीज़ जितनी जल्दी लोग अडेप्ट करेंगे उतना ही बेहतर है आगे के लिए। नहीं तो दिक्कत तो आना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से अभी रिपोर्ट था कि 2021 में दिल्ली में पानी की शॉर्टेज हो ही गई है, अब जो ज़्यादा होने वाली है। दिल्ली में ही नहीं, ये लास्ट 2 ईयर का बात बता रहे हैं हम आपको, अपने विलेज की। अच्छा, यहाँ क्या हुआ था? पूरे एक दिन में ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में किसी हैंडपंप में पानी नहीं आ रही थी। गांव में हैंडपंप में पानी नहीं, सुबह से शाम तक। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मैं खुद का देखा हुआ बात बता रहा हूँ। बताइए। उसी के बाद मैंने ये सब सोचना शुरू किया कि गांव में अगर ये हाल एक दिन के लिए हो गई तो शहर में क्या होगा, और आने वाले समय में गांव में अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या करेंगे। तो जहाँ कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, उस वजह से मैं स्पेशली गांव साइड में आना चाहा। यहाँ कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा घर बनवा रहे हैं। तो मैं सोचा कि अगर ये आइडिया से लोग घर बनवाएंगे तो कुछ तो प्रॉफिट उनको भी होगा और नेचर को भी होगा। बहुत चीज़ बैलेंस में रहेगा। अगर नेचर बैलेंस है तो फ्यूचर बैलेंस है। बहुत अच्छी बात, नेचर बैलेंस है तो फ्यूचर बैलेंस है। तो आइसत भी मैंने इसी कारण से शुरू किया था कि जो आपने ये बात बताया ना कि जो आप ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखें और ये यहाँ पे जो हैंडपम्प वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, तो आपने सोचा कि इस चीज़ को यहाँ पे रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो ये मैंने भी सोचा कि दिल्ली में तो मैं रह के जितना भी कर लूँ तो बेटर है कि इस चीज़ को मैं अगर इधर से शुरू करता हूँ देन आई कैन हेल्प। यहीं पे कंस्ट्रक्शन पहले अगर यहाँ पे नहीं बताया गया ये सब बात तो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जो नॉर्मल हो रहा है। कंस्ट्रक्शन से मैंने एक और चीज़ देखा हुआ है, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में प्लांटेशन है, सब गार्डन तो सारे स्कूल में होती हैं, लेकिन वो वाटर जो प्लांट में देते हैं फ्रेश वाटर देते हैं, ड्रिंकेबल वाटर देते हैं। अच्छा, जो कि प्लांट का डिमांड नहीं होता है कि हमें ड्रिंकेबल वाटर दें। ऐसा होता है जैसे हमारा जो वेस्ट वाटर हुआ, शावर वाटर हुआ, जो नहा लिए हम, कपड़ा धो लिए, स्कूल्स वॉश कर दिए, वो सारे पानी ड्रेन से चले जाते हैं सीवर में। तो उसका भी एक ट्रीटमेंट प्लांट मैंने डिसाइड कर रखा है कि बड़े बड़े कमर्शियल प्लेस पे मैं इसको आइडिया दूंगा। अगर वो चाहेंगे मुझसे कंस्ट्रक्ट कराना, मैं उनको डिज़ाइन भी दूंगा। इससे क्या प्रॉफिट है, जैसे वेस्ट वाटर जो आया उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ट्रीट करके हम लोग उसको जो मतलब इन्फेक्शन पार्ट होता है, टॉक्सिक पार्ट, उसको हम लोग डेड करेंगे। बाकी वाटर को इस लायक बना देंगे कि गार्डनिंग को हार्म ना हो और वो प्लांटेशन हम लोग वो प्लांट में वो पानी दे सके, जिससे कि वाटर का भी सेव हुआ और प्लांट को भी फ़ायदा हुआ। तो मान लीजिए आगे समय में चंपारण एरिया में अगर कुछ स्मॉल टाइप ऑफ दिस सोसाइटी प्लांट वाज सेट अप इन आवर कॉलेज, सम स्टूडेंट वाज। तो आपने इस चीज़ पे मेक द प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट कर भी चुके हैं, एम्प्लॉय भी कर चुके हैं, एंड यू नो द नो। हमारे कॉलेज में कभी गार्डनिंग में वेस्ट वाटर के सिवा कोई वाटर नहीं यूज़। बताइए। और उस वेस्ट वाटर को प्यूरीफाई करके हम लोग गार्डनिंग में यूज़ किया। बताइए, बिहार में तो फ्लड की कमी नहीं है, पानी तो आपको रेडी मिल जाएगा। खैर इससे चैलेंज इसमें हंसना, इसमें यहाँ पानी है तो लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं जयपुर से पढ़ा हूँ, वहाँ पानी की दिक्कत है तो लोग सोचते हैं पानी के लिए। मैं यहाँ आइडिया इस वजह से यहाँ शेयर करना है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि देखिए मैं फ्लड पे हंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बिहार में फ्लड का इशू मेरे ख्याल से बहुत तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब शायद आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कैसे किया जा सकता है। प्रॉपर पोजीशंस पे प्रॉपर कैनाल अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू सिविल इंजीनियर, हर जगह का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है और सबका एक प्रॉपर हाइट होता है। अगर उस हाइट को सिविल इंजीनियर स्टडी करके बता दे कि इस जगह से कैनाल फ्लो होगा, इसमें आइडिया नहीं चलता। अच्छा, यहाँ से आप निकाल दो, मेरा ज़मीन है, यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, ये चीज़ नहीं। सिविल इंजीनियर देखता है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है, जिससे कि पब्लिक को भी हेल्प हो जाए और नेचर भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम वो कैनाल प्रॉपर बना दे तो विलेज तक बाढ़ की पानी आने के सवाल ही नहीं है। कैनाल खुद उसको लेके चला जाएगा प्रॉपर जगह पे। पूरा यू टर्न था, जिससे क्या होता था, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। जब वो रोड वैसे बना तो क्यों बना, जब हमारा टाइम आया उस प्रोजेक्ट पे काम करना, उस यू को तोड़ के सीधा करना था। अब आप मतलब वो यू को बंद करके एक सीधा रोड बनाना था।
तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? आप काम वही बाद में करवाए, हाँ वहाँ भी पैसा वेस्ट किए, यहाँ भी अब लगा रहे हैं, हाँ, तो क्या फ़ायदा हुआ? फायदा इसको होना था, हो गया। जिसको होना था हो गया। यही तो बात समझना चाहिए सबको। इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, ये आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं। अच्छा ये बताइए, एनी पर्टिकुलर इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई ऐसा इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन वर्क जो है दैट योर कंपनी नारायण कंस्ट्रक्शन कैन readily implement in a very cost effective manner to your clients and prospects having a stipulated budget? मतलब कोई स्टिपुलेटेड बजट है, your client is having a particular budget and you already, जैसे कि आपने बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल शायद कॉस्टली पड़े, बट उसका ऑल्टरनेटिव आपने बताया कि प्लांट लगा दें। उसके अलावा और कुछ है, नल वगैरह को लेके या फिर ऐसा कुछ लेके जो आप रेडली बता सकते हैं? मैं वहाँ भी आ रहा था। हाँ बताइए। अभी मॉडर्न टाइम में एक ऐसे नल चले हुए, ऑटोमेटिक नल जो बोलते हैं, जो सेंसर्स पे भी चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आपको सेंस करके पानी निकालेंगे, बाकी आपका हाथ हटा पानी रुक जाएगा। ओके। तो मैं प्रीफर करना चाहता हूँ, कॉस्टली नहीं आते हैं वो नल। वो क्या है कि मार्केट में एक एजेंडा फैला दिया गया है कि ये महंगे हैं। ओके, एजेंडा फैला दिया गया। हाँ, एजेंडा फैलाया गया है कि ये महंगे कि हैं। मैंने मॉल्स में ही देखे हैं अभी तक, या होटल्स में, 5 स्टार्स में। हाँ, वो होटल वाले, मॉल्स वाले क्यों ये नल लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है ये कॉस्टली नहीं है। आप अगर एक एक करके लोगे तो आपके दिमाग में बैठा ये कॉस्टली है। अगर आप बल्क में ला रहे हो तो सेम रेट मिलेगा आपको। ये बात इनसे बेहतर को नहीं जा सकता। और अगर आप वही ला रहे हो, अगर आपका घर बनवा रहे हो, कम से कम आपके एक घर में कम से कम 20-25 नल तो लगना है। तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लो, डायरेक्ट होलसेल पे। अगर ये नल लगाने से देखिए आपका बेस्ट फ़ायदा क्या है कि आपको वाटर सेव हुआ, आपको कॉस्टली, मोटर भी कम चलाना, मोटर कम चलाना, बिजली बिल कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आया, मोटर कम चला। वाटर एक घर की बात नहीं है, ये तो समस्त सोसाइटी की बात है। हाँ, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए जहाँ पे देखिए लोग आजकल फैशन में जी रहे हैं। आप जैगवार का 10,000 का नल लगवा लोगे, लेकिन जो नल आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप नहीं जाओगे। तो ये चीज़ थोड़ा सोचने वाली बात है। जैसे हम सिविल इंजीनियर हैं, हम कॉस्ट और प्रॉफिट, क्लाइंट की प्रॉफिट, दोनों को देखते हुए कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। अब हम कह देंगे नहीं आप जैगवार ही लगाओ, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। और हम कह अगर जैगवार में उस टाइप की चीज़ है तो आप लगवाओ, तब लगवाओ। हाँ, अगर आपका बजट भी हम आपको टाइप्स बताएंगे, कंपनी आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल, आप अपना एक्सपीरियंस हमें बता सकते हैं जो कि बेस्ट हो। क्योंकि आप भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हम आपको बेस्ट आइडियाज़ देंगे, आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो आपको डिसाइड करना है। और जैसे कि ये देखिए नल हो गया, एक तो सबसे बेस्ट चीज़ हुआ नल का। दूसरा होता है हम टाइल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, टाइल्स में भी बहुत सारी टाइल्स आती हैं। अच्छा, एक फ्लोर टाइल्स होती हैं, वॉल टाइल्स होती है, एक रूफ टाइल्स भी आती हैं। मैंने तो ये देखा है लोग तो बाथरूम में भी वैसे से टाइल्स लगा देते हैं कि एक बार तो मैं गिर गया था। नहीं, बाथरूम टाइल्स, बाथरूम की जो फ्लोर टाइल्स होती है वो रफ सरफेस वाली होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन में। और एक रूफ टाइल्स आई हुई है अभी ऐसी, अगर आपको मान लीजिए कि प्लांटेशन से भी आपको मन नहीं है, फिर भी घर ठंडा रखना है, तो एक रूफ टाइल्स आती है जिसके लगाने के बाद वो इतनी वाइटनेस होती है ना, शाइनिंग उसमें, कि वो सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट करने से ठंड रहती है। ये सब चीज़ें जो है ना, मैं यही सब आइडिया लेके तो यहाँ आया हूँ कि कुछ मतलब ये अच्छा था कि मैंने आपको इनवाइट किया, अपने व्यूअर्स को आपके बारे में इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने डेप्थ में आपसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। अभी तो कंस्ट्रक्शन लाइन खैर अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग है। और जी तो आपने जितना बताया मेरे ख्याल से वो मे बी जस्ट 5 to 10% व्हाट यू टोल्ड, बट दिस 5 to 10% कवर्स द एंटायर थिंग। हाँ, मैंने सब चीज़ बता दिया कि थोड़ी सब चीज़ के बारे में बता दिया। नहीं बिल्कुल, ये डिसाइड पब्लिक के ऊपर है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो या प्रेजेंट को सेव करके जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इवन आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स दैट इफ यू हैव listened to Mr. Neeraj and paid attention to all that he has told, so I think there is hope in Bihar, there is hope in Champaran that good things are going to happen, and with people like us who are willing to do something for Bihar. That is why ISERT was also set up in Bihar for this thing, because already there are enough companies working in the cities. We have to select the proper place for startup. From there we will cover the whole Bihar, whole district, then after whole country, then whole world. We can reach out to because people. It is not a work of single person. Our motives are common, our vision is common, but our paths are different. I'm going through the information channel, providing information to the people, calling people like you
like who have having similar vision, and your message is going to the people who want those services. So people want information services also that I can provide, and people want your service also. अगर आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। हाँ, और आप लोग नहीं रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे? तो this is what our viewers should understand, that it is a triple kind of correlation, chain, and it is a if tri-junction. you follow this chain, the whole world will be happy. I am dependent on my audience, he is also dependent on his audience, and we all are dependent on our audience. Audience is dependent on for information on us, so it's like a coexistence. Thankfully that it is happening in Bihar and a very remote area, but that is not about to lose hope, it is about giving hope. Yes. कि हम remote area से चालू करें, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कि गलत चीज़ हो जाए, हम पहले ही ऐसा यहाँ initiate अगर कर हम दें, हार्ड वर्क अभी करते हैं, अगर यहाँ तो पे will not let happen the problems of city that has happened. तो अपने इन्वायरमेंट को पहले प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपना ऑफिस यहाँ लगा दिया। ये चीज़ ये बहुत बढ़िया रहा। सो थैंक यू टू आवर व्यूअर्स फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू टू मिस्टर नीरज कुमार टू गिव अस अ टाइम, एंड वी होप टू get more comments and feedback from you all, so that we can get more information from Mr. Neeraj and other sources on what next topic that you would like to discuss. On behalf of iSearch, I want to give one message. Please. To be happy, keep the nature happy. If the nature will happy, you will be happy. कितने सिंपल सी बात है, बट इट्स डेफिनेटली द ट्रूथ. हम क्या होता है कि इवन मी थोड़े कभी कभी वर्ड्स कुछ हाई-फाई यूज़ कर लेते हैं, बट I have only used the simple बट words. सिंपल वही है, क्योंकि लोग को समझना भी आना चाहिए. अगर हम कुछ हम बात कर लिए और कोई कुछ समझ नहीं पाया तो फिर क्या मतलब बना हमारे. सही बात. सो इससे सिंपल में और मैं क्या कह सकता हूँ. तो अब हमारे व्यूअर्स हमें इजाज़त दें कि सो दैट मिस्टर नीरज एंड माई सेल्फ वी कैन गो एंड हैव अ ड्रिंक. I mean not alcoholic drink, not cocktail, mocktail, some refreshing drink, क्योंकि हम यहाँ आज thankfully clouds हैं, तो not so hot but pleasant environment है, though it is little warm, but it is a good environment to have this chat, and we are waiting for your feedback on next topic that you would like to discuss with Neeraj. We'll bring him back on our show, and keep following us, and we are not so regular because we're just starting up, and we need more people like Neeraj to join our this iSearch channel, so that we can bring them on to this channel, and Subscribe the channel. Subscription is required for us to grow in Bihar and internationally as well. But the बात ये भी है कि अगर आप हमको सजेशंस देंगे कि किस फील्ड से लोग को ला के इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिलेटेड चीज़ें पे बात करें. जैसे आपने बोला कि आपको मैंने दिखाया कि कंस्ट्रक्शन वर्क पे, अब कभी हम बिहार में इस एरिया में नहीं सोचते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें क्या है, इतना कोई सोचता भी नहीं है. हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बेसिकली कंस्ट्रक्शन कराते टाइम तो कोई नेचर को सोचता ही नहीं है. कभी नहीं सोचता. क्योंकि लोग को लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन है तो नेचर नहीं होगा. ऐसा नहीं है. हर कंस्ट्रक्शन में नेचर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक नेचर को आप हटा के वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नेचर है. वही तो बोला मैंने कि नेचर बैलेंस देन फ्यूचर बैलेंस. एब्सोल्युटली. सो मैं ये कहूँगा कि आपको किसी भी फील्ड में, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन, तो एक हमने किया है आज बात, तो म्यूज़िक मैंने बोल दिया. इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी लेट्स से स्पोर्ट्स, it could be finance, any field, everything something or the other is related to environment. और उसमें कोई टॉपिक के लिए आप किसी को हमारे शो पे लाना चाहते हैं तो do send us a message, and we'll get back to you regarding that, and we'll try our best to bring more such wonderful people on our show. Thank you to our viewers, and have a nice evening.